Hello everyone and welcome to Love Consciousness and Healing. This channel is dedicated to enriching lives. तो दोस्तों आहो भाग्य हमारे आज हमारे साथ हैं वेरी प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल गुरु. प्लीज़ वेलकम न्यू नित्यानंद स्वामी. नमस्कार. तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आध्यात्मिक कहानियाँ और आज हमारे साथ स्पिरिचुअल गुरु खुद हैं जिनसे हम उनकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हमें बताइए कि आपकी आध्यात्मिक जो लाइफ है वो कैसे शुरू हुई. So we are here in Shanti Mandir, Nimbavali, just about 10 minutes behind the Samadhi shrine of Bhagavan Nityananda. So we find ourselves here 37 years later, and there must be some divine calling to come here. And we've been here since the 25th of January, celebrating 50 years of the statue being installed in the Samadhi shrine, and since the 27th, just upping the vibration or cleansing the land, and with the inauguration schedule on the 5th of February, which is a full moon. So we have here a house for myself, for some guests, for visitors, a place to meet them, and then next to it is a satsang hall which has 2 levels, so that we can have satsang downstairs, and upstairs can be hatha yoga courses or classes of different kinds. We're offering music classes to the local children on Saturdays and Sundays for an hour to 2 hours. They're very excited. Pre-COVID there were about 150 and now we're up to about 60, 70. So they come to learn harmonium, tabla, singing, and we're basically trying to teach them the songs that are sung in the Samadhi Mandir. So when they go there, they're not just sitting there wondering what's going on, they can participate. And the parents, grandparents who I've met in the last few days are very excited that their children or grandchildren have this opportunity. Next to it is Bhaktanjali, which is the housing. So according to architect Anil Dige, we can house about 72 people. And I'm sure Indian style it could be more, but comfortably 72 people. Each room has attached bathrooms, and there's a roof, there's a lobby. We'll have some Shanti Hastakala products because some of the local women also want to work and create, so a livelihood for them. And across from that is the Yagnashala, which we're going to call Shreyas, which means a higher path. So to bring the high into your life, you can come and do pujas and anushthan here. Because we've decided that Ganeshpuri and Kankal Haridwar are the 2 places where we're going to encourage people to go to get pujas, and it's a place where Bhagavan Nityananda has lived. The Ganges flows in Haridwar. These are 2 what we call in India Tirtha, meaning holy places. Next to it is a kitchen and dining hall. Right now we are feeding about 200 to 250 people every day. On a regular basis, I think it will be 15 to 25. We will have one of the cleanest places, cleanest ashrams here, and open to anyone and everyone, and people are excited about that they can come, stay, hang out. When Bhagavan Nityananda came here, that time he chose this place. You feel the vibrations here, and Mandagni is here, and I always, when I come in the morning, I always do pranam to Mandagni. It's so nice, the feeling, the ananda, the sukha, when you come here, it's different. We're surrounded by mountains and the river is right there. There's also hot water spring, really hot, in which you cannot take a dip. You have to take a mug and pour it over yourself. I think it's exciting, is how I feel to be in this space, and the welcome from the local people and their wish to uplift their own life. Somebody told me the other day, now the name Nimbavali, which till today was not known, will now be known to people all around the world. Near Ganeshpuri is how I still put it, so people know it's Ganeshpuri. And there's a big 6-lane highway or expressway coming to connect the north and south of India, and then a railway line. So I'm sure in the next 5 to 10 years, this infrastructure will change how Ganeshpuri is viewed by people, because all of a sudden it will be accessible. What I want is to offer them a place to meditate, to chant, to just be. And I just pray that the willingness, the surrender, the openness, and all of those things remain in me
to allow the grace to just create its magic, uplift this area and the people of this area and make it a happening place. The vibrancy that was there in Baba Muktananda's time, I think we need to bring that back. It was just too dynamic, the Shakti, and it's like water boiling. That's how I can say, and I feel that. I don't quite know what's going to happen or how it's going to happen, because a lot of capital investment is needed also. But I feel that if the Guru and God have brought me here, that the rest will just fall in place. We have all the arrangements. Whoever wants to come, most welcome. मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे माता पिता अवधूत भगवान नित्यानंद जी के और बाबा मुक्तानंद जी के दोनों के भक्त और शिष्य रहे। तो पिताजी का बाबा मुक्तानंद जी से दोस्ती जैसा भी था और माता जी तो एकदम समर्पित डेडिकेटेड भक्त थी। तो गर्भ से ही एक मार्ग पे आना हुआ। तो जब से पैदा हुआ तब से 20 साल की आयु तक बाबा मुक्तानंद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और स्कूलिंग सब मुंबई में हुआ, लेकिन हर एक वीकेंड सारी छुट्टियां वेकेशन सब आश्रम में बिताया। तो बहुत छोटी आयु से यहाँ लगा हुआ हूँ और करीब 4-5 वर्ष की आयु में विष्णु सहस्त्रनाम पाठ हो गया था। देवनागरी पढ़ने नहीं आता था। तो जब ये सब अभी सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पूर्व जन्म में कुछ रहा होगा, तो उसकी वजह से इस जन्म में गर्भ से ही गुरु प्राप्त हुए, मतलब बचपन से ही इस मार्ग पे लग गया हूँ। तो अभी 60 साल हो गए हैं। 60 साल, वाह। तो मतलब जीते बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ देखने को मिला। करीब 20 से 25 देशों में गया हूँ यही कार्य करते हुए। संन्यास लेकर कभी 42 साल हो गए। 18 वर्ष की आयु में संन्यास दिया बाबा मुक्तानंद जी ने, नाम दिया स्वामी नित्यानंद। और यहाँ है अवधूत नित्यानंद। तो इसके लिए गांव वाले मुझे न्यू नित्यानंद बुलाते, क्योंकि वो नित्यानंद ये नित्यानंद, तो कौन सी नित्यानंद की बात कर रहे हो? तो वो तो अवधूत भगवान नित्यानंद जी हैं। तो हम प्रयासरत हैं कि उनके कुछ गुण लक्षण हमारे जीवन में आए। तो भजन कीर्तन सत्संग शास्त्र पढ़ना, लोगों से मिलना ऑफ कोर्स एक बड़ा पार्ट है हमारे लाइफ का। तो सुख शांति समृद्धि इसकी बात करते हुए तो प्रयास करता हूँ लोगों को ये समझाने को कि आज का एक आधुनिक जीवन है। इस आधुनिक जीवन में जो हमको करना हो तो हम करें, लेकिन कम से कम जितना ध्यान कर सकते हो ध्यान करो, जप कर सकते हो जप करो, सत्संग कर सकते हो सत्संग करो। बातें भी हम जो एक दूसरे से करें ना, पॉजिटिव अपलिफ्टिंग बातें हों। तो कुछ लोग, मैं मानता हूँ, इस बात को मानते हैं, समझते हैं और लोग चाहते भी हैं। जैसे कोई भी मंदिर में आप जाओ तो भीड़ होती है। तो जब मैं बाबा मुक्तानंद जी से पहले जुड़ा फुल टाइम, तो करीब 15.5 वर्ष की आयु थी। मैं सोचा था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मैकेनिकल इंजीनियर क्या हो, तो बहुत सारे लोग बनते हैं, फिलॉसफी पढ़ो शास्त्र पढ़ो। तो उस दिन पूरा जीवन 24 अप्रैल 1978 को जीवन मुड़ गया, उसका डायरेक्शन ही बदल गया। और करीब 12 वर्ष की आयु का था तब एक दिन स्वप्न आया, और विविध स्वप्न जो आज भी कभी कभी ऐसे लगता है कि अभी देख रहा हूँ या देखा, कि कोई मंदिर के स्टेप्स पे बैठा हुआ और ऑरेंज कपड़े हैं बहुत थोड़े और एक माला लेके बैठा हुआ। तो उस समय मैंने अपने माताजी से कहा कि मुझे तो आश्रम में जाना है। तो बाबा मुक्तानंद जी ने कहा नहीं, लड़का है, उसको अपना जीवन बनाना चाहिए, करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आज विचार करता हूँ कि उन्होंने सच ही कहा, क्योंकि जो मूल आश्रम है उससे अलग हो गया। करीब 37 ईयर्स हो गए। तो पिछले 37 ईयर्स से अकेला एक शांति मंदिर इस नाम से संस्था बनाया। करीब अभी 4 आश्रम हुए जहाँ हम अभी बैठे हैं।
इसका उद्घाटन कल ही हुआ। अन्य अन्य स्थानों से महामंडलेश्वर संत और इत्यादि सब आए थे। काफ़ी भक्त लोग यहाँ इकट्ठा हुए और सबको एक खुशी हुई कि जो अवधूत नित्यानंद जी, बाबा मुक्तानंद जी की परंपरा से ही, मतलब कहीं और से आकर यहाँ जुड़ा नहीं, तो बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। और कई लोग जो यहाँ के लोकल हैं वो भी बचपन से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। वो भी बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, तो ऑलमोस्ट 3rd जनरेशन आए थे इन दिनों में मिलने। तो उनको भी बड़ी खुशी हुई कि एक आश्रम आने से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो आदिवासी क्षेत्र है, तो कुछ लोग अच्छे बन गए हैं पढ़ लिख कर, कुछ लोग अभी भी गरीबी है, खेती है लेकिन खेती होता नहीं है क्योंकि वेदर साथ नहीं देता है, इत्यादि से बहुत सारी बातें हैं। तो उनकी भी इच्छा है कि लाइवलीहुड के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक तो ठीक है, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सत्संग करेंगे, ये सब तो अवश्य में भी करेंगे, परंतु जो भी देख रहे हैं और जो प्रॉस्परस है, मैं उनसे कहूँगा कि आप शहर में बिजनेस करो या शहर में फैक्ट्री डालो, उससे अच्छा आप ऐसे रूरल एरियाज कहीं भी भारत में जहाँ भी आपकी अपनी लगन हो, वहाँ आकर आप फैक्ट्री डालो या बिजनेस खोलो और इनको भी कुछ प्रेरणा मिले। क्योंकि बॉम्बे तो ऑलरेडी बर्स्टिंग है, वहाँ तो बिल्डिंग्स बन रही है, मतलब सब चीज़ों की सभी को पता है कि बॉम्बे से निकलना है तो ढाईसर क्रॉस करना एक बहुत बड़ा काम है। तो 1 घंटा 2 घंटा सभी ने, मैं मानता हूँ कि बाय रोड निकाला है। तो ऐसे रूरल एरियाज़ को हम डेवलप करेंगे तो ज़िंदगी भी अच्छी होगी, सुखी होगी। और ऐसे स्थान जहाँ कोई महापुरुष का समाधि है या कोई बढ़िया मंदिर है, तो मैं मानता हूँ बजाय कि जो आधुनिक हम स्ट्रेस रिलीवर्स यानी अल्कोहल या ड्रग्स, ये सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कीर्तन, सत्संग, ये भी एक नशा है। और मैं लोगों से कहता हूँ विश्व भर में लोग इसको कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भारत में जन्मे लोग इस तरफ दृष्टि डालें। मैं तो कभी कभी विदेश में लोगों से, जो इंडियन हैं, उनसे कहता हूँ कि जब विदेशी हठयोग करके अपना जीविका कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, तो हमारे लिए तो ये और भी स्वाभाविक या नेचुरल है कि हम योग कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। और वास्तव में कितना पैसा चाहिए, मतलब जो आधुनिक ट्रेनिंग है वो तो है कि बहुत चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ भारत में जो प्रथा रही है कि एक गृहस्थ अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत रख कर बाकी का वो दान करता है, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो सोशल वर्क में हो, चाहे वो अपलिफ्टमेंट में, जैसे भी हर एक व्यक्ति अलग स्वभाव का है। तो मेरा अपना जो विचार और ये भाव है पिछले 30-35 वर्षों से, क्योंकि मैंने सोचा कि सत्संग तो करना है, ये तो हमारा बेस है, परंतु सत्संग के साथ समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो विशेषकर यूथ से मैं कहूँगा कि कर रहे हैं लोग, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि नहीं कर रहे, लेकिन अधिक संख्या में करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ जब से आया हूँ पिछले 10 दिनों में, आफ्टर 37 ईयर्स रहने के लिए, विजिट तो करता रहा हूँ हर 2-3 महीने में, परंतु रहने आया हूँ तो सभी का ये है कि माजा का है, मेरा क्या होगा, मेरे लिए आप क्या कर सकते हो। तो इसका मतलब एक भूख है दोनों तरफ से। और हमने यहाँ भागवत कथा की, भागवत कथा में भी अटेंडेंस अच्छी रही, तो उसका मतलब स्पिरिचुअल भूख भी है और मटेरियल भूख तो है ही, वो तो हमेशा ही रहा है, रहेगा। और दोनों को लेकर कैसे हम चलें। तो मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि त्याग की जो बातें चलती हैं, ये गलत भ्रम लोगों में है कि त्याग का मतलब सब कुछ छोड़कर लंगोट पहन लेना या हिमालय में जाना। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो त्याग की बात है, तो त्याग, अगर इंग्लिश में वर्ड सोचता हूँ तो मैं डिटैचमेंट, रहो संसार में, अपना कर्म करो, कार्य करो, सब कुछ करो, बट विद अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। हमारे उपनिषद में आता है साक्षी चेतो केवल निर्गुणश्च,
आत्मा की जब बात करते हैं तो आत्मा क्या, आत्मा एक साक्षी है, निर्गुण है और वो बस चेतना है, वो सब देख रहा है, वो साक्षी बनकर। तो वैसे ही हम भी जैसे कोर्ट में कभी विटनेस बनकर जाते हैं, तो वैसे ही जीवन अगर हम विटनेस इस भाव से देखें, जैसे हमारे शैव दर्शन में आता है, एक स्टेज है, स्टेज पे नाटक हो रहा है, स्टेज पे नाटक हो रहा है, हम देख रहे हैं, हमको वास्तव में उस नाटक से कुछ लेना देना नहीं है। हम कभी रोते भी हैं, कभी हंसते भी हैं, कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन वो थोड़े क्षणों के लिए आकर चले जाता है, क्योंकि सीन बदलता है। तो अगर हम जीवन भी उस तरह से जी सके कि हम जी रहे हैं, हंस लिया, रो लिया, जो कुछ भी है, लेकिन एक अटैचमेंट नहीं है। कभी कभी लोगों को कहता हूँ कि कोई हंसने वाला जोक बोलता है तो एक दो बार बोलता है तो हम हंस देते हैं, तीसरा बार वो फुस हो जाता है। लेकिन जब हम अपने दुख की बातें करते हैं ना, तो हर बार हम रोते, हर बार हमको लगता है कि अभी ये हो रहा है, अभी हो रहा है मेरे साथ। तो क्योंकि हमारे उसके साथ इतना अटैचमेंट हो गया है। तो अगर वो सब परिस्थितियों से हम डिटैच हो जाए तो मैं मानता हूँ कि सब सुखी हो जाएंगे। आसान नहीं है, मैं लोगों से कहता हूँ, सुन लिया मैंने, समझ लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन वास्तविक डिटैचमेंट इतना ईजी नहीं। आई थिंक गणेशपुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिसको एज अ डिटैचमेंट मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं अंधेरी में रहती हूँ, वहाँ से 2 घंटे के डिस्टेंस पे ये है। तो कभी कभी उस सीन से, लाइफ की सीन से थोड़ा दूर आके 2-3 दिन ऐसे माहौल में रहना जहाँ पे नित्यानंद बाबा की कृपा है, चारों ओर उनका नाम लिया जाता है, यहाँ का जो एक माहौल होता है, यहाँ पे आके मेरे मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो मैं हर 2-3 महीने में कोशिश करती हूँ आके 2-3 दिन यहाँ पे रुकूँ और अपनी लाइफ की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, उसमें जो भी उतार चढ़ाव चलते हैं, उससे थोड़ा डिस्टेंस कर लेती हूँ 2-3 दिन का। फिर थोड़ा अपने आप को क्लेंस करके, साधना करके, जाप करके, फिर अपनी बैटरी रिचार्ज करके फिर वापस संसार में जाती हूँ। तो गणेशपुरी एक ऐसी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद है हम सब पे कि उन्होंने हमको ऐसी जगह दी है। तो आपके कोई ऐसे अनुभव हैं जो आप नित्यानंद बाबा के बारे में जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? पहले तो आपने जो कहा हो तो सच है। मैं मानता हूँ कि सालों से जब यहाँ आना भी सुलभ नहीं था, 30s 40s में, 36 में भगवान नित्यानंद जी आया, ऐसा लोग कहते हैं। तो 40s और 50s में कभी मैं सोचता हूँ, ठाणे भिवंडी से फिर एक पॉइंट पे गाड़ी बस भी छोड़ देना पड़ता था। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो 2 घोड़े का टांगा चलता था, तो 25 पैसा 50 पैसा जो भी वो टांगा वाला लेता था, तो हम टांगे पे आते थे। तो कई लोग वर्षा के समय में, गुरु पूर्णिमा में, यहाँ जो रोड था, पुराने इंडियन रोड्स ऐसे थे, पानी ऊपर से जाता था। तो स्पेशली गुरु पूर्णिमा के समय पर 3 जगह थे, अलग जगह जहाँ लो था तो पानी भर जाता था। तो गाड़ी, बस, कभी इधर वाला इधर, उधर वाला उधर, पानी क्रॉस करके लोग आते थे, जो इधर इस तरफ आने वाला व्हीकल उसमें बैठकर वो यहाँ आते थे। तो मैं सोचता हूँ कि कितनी उनकी अपनी श्रद्धा रही होगी, जो भी लोग रहे हैं, कि आते थे। और कहना भी है कि भगवान नित्यानंद जी कुछ बोलते नहीं थे। एक साधु महात्मा कभी कभी अपनी स्टोरी सुनाते कि मैं गया, क्योंकि उनके बारे में मैं सुना, तो गया तो पीठ पब्लिक की तरफ, मुंह दीवार की तरफ। तो उसके मन में एक विचार आया कि मैं इतने दूर से आया हूँ और ये देखेंगे भी नहीं मुझे। तो बोले कि जब मैं उनके सामने आया तो मुड़ गए, आंखों में आग डाला, देखा, निकल गया। साधु महात्मा खुश हो गया, लेकिन फिर उसको एक शंका आई, क्या ये थक गए थे और मुड़ गए? तो जब मुड़कर देखा, उसने देखा कि फिर से वो दीवार की तरफ फेस करके सो गए थे। तो उसने कहा कि बहुत बड़ा एक अनुभव मेरे अपने जीवन में था। मैं फिजिकली तो उनसे मिला नहीं, 14 महीने के बाद मेरा जन्म है, वो अगस्त 61 में गए, मेरा अक्टूबर 62 का जन्म है। परंतु एक अंतरंग संबंध उनके साथ रहा है। जब करीब 19 साल का था तो
तो मुझे एक दिन अंदर से ऐसे लगा कि वो मेरे पूरे शरीर को भर रहे। उनकी पुण्यतिथि का समय था, तो कुछ समझ नहीं आया, बहुत छोटी आयु थी, लेकिन ऐसे लगा कि शरीर फूल रहा है। इतना कितने फुट का हुआ कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा मुक्तानंद जी उसी समय उठकर अपने जा रहे थे यहीं समाधि पर दर्शन करने, और नॉर्मली उनके साथ मैं जाता, लेकिन उस दिन लेकर के नहीं आए। थोड़ा मन में निराश हुआ कि अरे साथ नहीं लेके गए। परंतु जब ये अनुभव हुआ तो मुझे लगा अरे हम उनको कहाँ कहाँ खोजते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमेशा ही हमारे साथ है। तो वो बुद्धि उस दिन आ गई, तो पूरा एक आउटलुक चेंज हो गया कि हम भागते हैं। लोगों से मैं कहता हूँ हम जा जाकर उस मूर्ति को पकड़ना चाहते हैं, आरती आती है तो आरती लेना चाहते हैं, वहाँ से प्रसाद चाहते हैं, हम चाहते बाबा मिल गए। लेकिन मुक्तानंद बाबा जी भी कभी कहते थे जीता जागता जो भगवान है उसको हम इंसल्ट करते हैं, उसको हम गाली देते हैं या उसको मिसट्रीट करते हैं, और फिर मूर्ति को जाकर हम प्रणाम करते हैं। तो उनका कहना था कि ये भी सब जीते जागते ही भगवान की मूर्ति है, चैतन्य है, तो इनको भी उतना ही मतलब मान सम्मान से आप बातें करो, ट्रीट करो जितना आप एक मूर्ति को करते हो। समय लगता है ये सब समझने। तो यहाँ सप्ताह होती है, एक दिन की सप्ताह होती है, 3 दिन की सप्ताह होती है, और गुरु पूर्णिमा पर 7 दिन की सप्ताह होती है, यानी 24 आवर्स टाइम्स 7। तो मुझे अच्छा लगता है आना, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कहीं भगवान नित्यानंद इन सब के बीच में चल रहे हो तो पता नहीं, लेकिन एक भावना लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं मूर्ति को प्रणाम करता हूँ, देखता हूँ सब, लेकिन फिर मैं पब्लिक को देखता हूँ कि ये पब्लिक में कौन ऐसा अनोखा, स्ट्रेंज, वियर्ड, मतलब अलग सा कोई व्यक्ति, तो वो ही होंगे करके। अभी रिसेंटली यहाँ एक दिन ऐसा हम लोगों को अनुभव हुआ। एक ऑस्ट्रेलियन लेडी थी, खड़ी थी, उसने कहा भगवान नित्यानंद आए। तो मैं तो बैठा हुआ था, वो चेयर पे बैठ गई, वो ध्यान करने लग गई। तो ध्यान करने लग गई तो एक साधु आए, बियर्ड, केरला के, तो उसको देखकर ऐसे ऐसे उन्होंने किया, फिर मेरे पास आए, ऐसे प्रणाम किया। तो बोला महाराज कहाँ से, ऐसा। तो बोला शायद मौन में होंगे। हमारा जो आश्रम देखता है उसका नाम भास्कर है, तो वो उतने में से गुजरा, तो उसके कंधे पे हाथ डाल के बोले ए भास्कर। तो मैं बोला अच्छा ये साधु मौन में है या मेरे साथ मौन में है कि क्या है। फिर मुड़े, आए वापस, बोले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू करके चले गए। हम उनके शब्दों में खो गए कि कौन क्या। तो किसी ने पूछा वो कहाँ से आए, कहाँ गए। तो बोला वो तो हमने देखा ही नहीं कि कहाँ से आए, कहाँ से गए। तो मैं मानता हूँ इस तरह से गुरु है, भगवान है, जिसको भी हम मानते हैं वो हमको दर्शन देते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा भी है कि न जाने किस रूप में नारायण दे जाए। तो ऐसे ही काशी में शिव जी का दर्शन हुआ, मतलब उन्होंने थप्पा मारा बैक पे, मैं निकला, मुस्कुराता हुआ चेहरा था। तो ऑफकोर्स मैंने नोटिस किया कि इतने प्रसन्न। फिर उसने पीठ में मारा, जैसे ही एक कदम आगे गया, मुझे लगा ये तो शिव है, मुड़ा तो ये मतलब मुझे लगता है कि हमारा शास्त्र कहता है कि परमात्मा को कहीं भी खोजो मत, वो तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। तो इंग्लिश में भी वो जो एक पोम है ना, वॉकिंग अलोंग द बीच, कि स्वप्न है, देख रहा हूँ, कष्ट के समय में अकेले ही पग चिन्ह है, बाकी समय में 2-2 पग चिन्ह है। तो भगवान से बोला अरे कष्ट के समय में ही छोड़ के चले जाते हो। तो भगवान कहते नहीं, कष्ट के समय तो बेटा मैं तुमको उठाता हूँ। तो ये मेरे अपने जीवन का भी अनुभव है कि मेरे जीवन का 85 to 95, मतलब 1985 to 19 बहुत कठिन समय था। तो मूल संस्था से अलग हो गया, विरोध हुआ, फिर कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा लगा कि अरे कहाँ ये अध्यात्म में आ गया, कहाँ ये साधु इन लोग के बीच में आ गया, अपना रेगुलर जीवन जीता अच्छा होता, शायद ना कहूँगा कि सुखी होता, ऐसे सारी। लेकिन माता पिता अच्छे थे, उनके साथ 1 साल रहा। एक हमारे महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी महामंडलेश्वर विल्लेपार्ले संन्यास आश्रम के, उनका बहुत प्रेम मिला।
1985 to 2005 उनके साथ रहा। फर्स्ट 20 ईयर्स बाबा मुक्तानंद जी के साथ, फिर नेक्स्ट 20 ईयर्स स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ। और उन्होंने एक ग्रैंडफादर जैसा प्रेम किया, कभी ऐसा ज़बरदस्ती नहीं किया, लेकिन ऐसा मतलब धीरे धीरे मोड़ना कि तुम इस मार्ग पे आ जाओ, लगे रहो। तो 1996 में महामंडलेश्वर पद मिला सन्यासियों से, महानिर्वाणी अखाड़े से। फिर एकदम से पता नहीं ऐसा हुआ कि आश्रम होना चाहिए। पद तो मिल गया, पद तब मिलता है जब आश्रम हो, आश्रम ही नहीं है, इन्होंने पद दे दिया। तो मैंने कहा इनका एक रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए आश्रम बनाना चाहिए। तो 96 में आश्रम बनाया। तो हरिद्वार में ही था मैं 1989 में। तो दिसंबर का महीना था, गंगा जी उस समय बहुत ठंड, मतलब फ्रीजिंग कोल्ड होती है। तो पता नहीं शायद मन में जो भी भावना रही होगी, तो रात को करीब 3-3:30 बजे गंगा जी में गया और 45 मिनट्स गंगा जी में खड़ा रहा। तो उस 45 मिनट्स में सामने बीच एकदम फ्लोइंग पानी में भगवान नित्यानंद जी खड़े, आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तो सब डिस्टर्ब था, तो इंटरनल कम्युनिकेशन जो भी हुआ, फिर मैं करीब 5-5:30 बजे रूम में आया। एक वुलन शॉल था, वो पहन के बस बैठ गया। तो मुझे लगता है 2 घंटे गए होंगे। तो जो भी जीवन का चमत्कार, ब्लेसिंग, जो कुछ भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उनका तो वैसे भी नॉन वर्बल था। तो जो भी उन्होंने किया, तो उसके बाद जीवन थोड़ा ट्रैक पे आते आज 4 आश्रम है, 20-25 देशों में घूमना होता है, और सत्संग का एक रस, एक आनंद, एक वास्तव में जब लोग सोचते हैं ना कि क्या एक्सपीरियंस हुआ, तो लोग एक मिरेक्युलस, मैजिकल ऐसा सब सोचते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ होता है ना, मैं ना नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं मानता हूँ जो वास्तविक जो मैजिक है वो इंटरनल चेंज है। मैं गधा था, घोड़ा हो गया, घोड़ा का हंस बन जाऊँगा, सो मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा आता था, वो गुस्सा चले गया, झगड़ा करने की इच्छा होती थी, मतलब ये सब जो नॉर्मल समझते हैं ना, तो मतलब अभी लगता है क्या है। और अभी उम्र भी हो गई, तो अभी ऐसे लगता है पता नहीं कितना जीऊँगा, 10 जीऊँगा, 20 जीऊँगा, 25 जीऊँगा। तो ये जितना भी शेष समय है, आनंद में जीना है, मस्ती में जीना है, खेलते हुए जीना है, जैसे हम बचपन में रहे। तो लोगों को यही मैं कहता हूँ, बहुत सीरियस मत हो जाओ, स्माइल करना सीखो, अच्छी बातें करना सीखो। क्योंकि बाकी तो एक बार अगर मैं आपके दिल को गलत बोलूँगा, फिर उसको ठीक करने में 10 साल हो जाते हैं। ये बोलूँगा नहीं, मैं आई डिडंट मीन दिस, आई मेंट दैट, नो रियली प्लीज अंडरस्टैंड, करते करते उसे जब विचार आया, स्वॉलो कर दो, भूल जाओ, आगे चलो। कभी कभी अभी तो जब समझदार बन गया, तो मैं जाकर चुपचाप बैठ जाता हूँ, या तो नेचर में जाता हूँ, या यूट्यूब देखता हूँ। यूट्यूब पे कहीं कॉमेडी शोज़ होती हैं, या कुछ कभी म्यूज़िक होता है, कभी किसी का कीर्तन होता है, तो हेडफोन लगा के वो सुन लिया। कभी थोड़ा 10-15 मिनट नींद आ गई, फिर जब उठ गया तो याद नहीं रहता है कि क्या हुआ था। फिर हाथ मुँह धो लिया, बाथरूम गए, फिर चलो बाहर। मतलब ये सब टाइम लगता है। मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ, यूँ मत सोचना कि कल उठे, क्लिक हो गया, समझ गया, अभी मैं मैजिकली कोई